Hi guys, welcome to my channel Chalo Revision Kare. So till the last day we have studied about what is a compiler, difference between a compiler and an interpreter, how does the language translation process occur and what are the phases of the compiler. Today we are going to study on lexical analyzer, but before that we will just go through a small revision on the phases of compiler. I hope you can see the diagram in the right hand side. So a lexical analyzer is the first phase of the compiler, which is followed by a syntax analyzer, which is again followed by semantic analyzer, then intermediate code generator, machine independent code generator, code optimizer, after which there's the code generator and machine dependent code optimizer. How does this full process of compilation occur in these phases of the compiler? Let's discuss that also as a revision. So first the character stream is taken. ये character stream lexical analyzer के अंदर जाता है, जो token stream में convert हो जाता है. After this token stream is taken by the syntax analyzer, the syntax analyzer forms a syntax tree. Syntax tree बनाता है. ये syntax tree semantic analyzer में जाता है, जो एक annotated syntax tree form करता है. कुछ changes करके type checking वगैरह add करके syntax tree बनाता है. ये जो सिंटैक्स ट्री है ये अभी जाता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के लिए. आफ्टर द इंटरमीडिएट कोड जनरेटर हैज प्रोसेस्ड it brings the output as an intermediate representation, which intermediate representation is fed into the machine independent code optimizer, which gives the intermediate representation if after optimization if required, right? After this optimization, this intermediate representation is taken by the code generator, which forms the target machine code or the assembly code, which is quite close for the machine to now understand. After which, sometimes we have a machine dependent optimization using the machine dependent code optimizer for the machine to do fast compilation, right? सो ये हो गया हम लोग का फेजेस ऑफ कंपाइलर. बट आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्सिकल एनालाइजर के बारे में. कौन है लेक्सिकल एनालाइजर? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपाइलर कंपाइलर का फेज, राइट? तो हम लोग देखते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर. पहले कंसंट्रेट करते हैं. लेक्सिकल एनालाइजर क्या है पहले वो देखते हैं. तो लेक्सिकल एनालाइजर इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्सर और टोकनाइजर. यू कैन सी इट ओवर हियर, राइट? लेक्सर या फिर टोकनाइजर कहते हैं हम इसे. ट्राई टू डू सम एनोटेशन. ओके. लेक्सर और टोकनाइजर भी कहते हैं हम इसे. एंड इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर, राइट? First phase of the compiler. And what does it do? It takes the source code, it parses through the source code and forms the sequence of tokens out of it, right? अब कुछ नया देखने वाले हैं. what is that? क्या what are these tokens? These tokens are smallest meaningful units. Okay, these tokens are the smallest meaningful units of the language. And what are these smallest meaningful units classified into? It might be keywords, it might be identifiers, it might be operators or literals, right? मतलब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? एक लेक्सिकल एनालाइजर अब तक हम लोग जानते थे कि सोर्स कोड को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पार्स करता है और उसको पैटर्न्स के साथ मैच करके टोकन्स बनाता है. अब ये टोकन्स क्या होता है ये हम लोग जान रहे हैं कि टोकन्स होता है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट. एक लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट वो क्या हो सकता है? वो एक कीवर्ड हो सकता है, वो आइडेंटिफायर हो सकता है, वो ऑपरेटर हो सकता है या फिर लिटरल हो सकता है. इसके बाहर कुछ होगा तो लेक्सिकल एरर हो जाएगा, राइट? ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस. अब इसका वर्किंग के बारे में देखते हैं. लेट्स गो टू द वर्किंग ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर. ओके, वर्किंग ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर. तो हम लोगों के पास ये शुरुआत हो रहा है सबसे नोन कॉन्सेप्ट से. वो क्या है? इनपुट क्या है लेक्सिकल एनालाइजर का? आप सबको अभी तक पता चल ही गया है कि लेक्सिकल एनालाइजर का इनपुट है स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स. नथिंग टू फॉरगेट अबाउट दिस. नेक्स्ट लेट अस गो टू टोकनाइजेशन.
तो लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या है? टोकन्स प्रोड्यूस करना, और उसी प्रोसेस को हम लोग करेंगे टोकनाइजेशन, राइट। टोकनाइजेशन क्या करता है? ग्रुप करता है इन कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर स्ट्रीम जो हम लोग के पास जा रहा है, उस कैरेक्टर स्ट्रीम से कैरेक्टर्स को ग्रुप करता है। और क्या करता है? ग्रुप करके टोकन्स बनाता है प्री डिफाइंड रूल्स के बेसिस में, जो हम लोग पैटर्न्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा है पैटर्न मैचिंग। देखिए पैटर्न मैचिंग करके ये बनता है। एंड इन रूल्स से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे क्या? कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, ऑपरेटर्स आइडेंटिफाई करेंगे, पंक्चुएशंस, आइडेंटिफायर्स, ये सब आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे जो लिखा था हम लोग का, ये सब ऑपरेटर्स, लिटरल्स, ये सब आइडेंटिफाई करेंगे। ये हो गया हम लोग का प्रोसेस ऑफ टोकनाइजेशन। अब आ गया हम लोग का टोकन्स, जो हम लोग स्ट्रीम ऑफ टोकन्स निकाल रहे हैं एज आउटपुट। यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ टोकन्स निकलेगा। व्हाट आर दीज टोकन्स? तो टोकन्स यही सब में क्लासिफाई हो सकता है। कीवर्ड जो भी हम लोग का प्री डिफाइंड वर्ड्स है इन द कंपाइलर, एज द लैंग्वेज हैज दोज वर्ड्स प्री डिफाइंड इनसाइड इट टू सिंबॉलिफाई कि ये काम करेगा। जैसे इफ हम लोग का कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए काम करता है, दैट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ये रिजर्व्ड वर्ड है, हम लोग उसको ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं कहीं पे। दैट इज द कीवर्ड। ये सब हम लोग का कंपाइलर के अंदर रहता है। फिर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या है? कोई भी नेम्स, वेरिएबल का नेम, क्लास का नेम, कहीं पे लगेगा तो किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं उसका नेम, वो सारे नेम्स आइडेंटिफायर्स के अंदर आएगा। फिर लिटरल, जहाँ पे नंबर्स होगा, कांस्टेंट्स होगा, वो सब कुछ लिटरल्स के अंदर में आएगा। और ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स में प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, जो भी ऑपरेटर्स हम लोग के पास है वो सब कुछ आने वाले हैं। पंक्चुएशंस में पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, कोलन, ये जहाँ पे जो यूज होता है वो सारा यहाँ पे आने वाला है। तो आई गेस टोकन्स के बारे में आपका अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। टोकन्स में आएगा कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आ सकता है, आइडेंटिफायर्स आ सकता है, लिटरल्स आ सकता है, ऑपरेटर्स और पंक्चुएशन आ सकता है। इसके बाहर कुछ होगा तो यहाँ पे देखिए लेक्सिकल एरर हो जाएगा। तो लेक्सिकल एरर क्या है? जब ये लेक्सर कुछ आइडेंटिफाई कर रहा है, बट उसको किसी भी इन सारे पैटर्न्स में से किसी भी पैटर्न में मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट। कोई भी सिंटैक्स रूल्स में मैच नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये पैटर्न होना चाहिए। किसी भी पैटर्न में मैच नहीं हो रहा है, देन वी विल से दैट ये अभी लेक्सिकल एरर में चला गया है। तो ये एरर वो रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, हो गया हम लोगों का लेक्सिकल एरर। अब फाइनली हम लोग पढ़ेंगे कि आउटपुट में क्या आ गया। हम लोगों को पता है कि स्ट्रीम ऑफ टोकन्स हम लोगों का आउटपुट होता है, तो ये सीक्वेंस ऑफ टोकन्स आउटपुट में जाएगा। एंड द नेक्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर को ये स्ट्रीम ऑफ टोकन्स दे देंगे, ताकि नेक्स्ट फेज हम लोग का क्या है आफ्टर लेक्सिकल एनालाइजर? यू रिमेम्बर, राइट? इट इज द सिंटैक्स एनालाइजर। तो सिंटैक्स एनालाइजर के पास ये जब जाएगा, इट विल बी प्रोड्यूसिंग द सिंटैक्स ट्री, राइट। ये हो गया हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। अब ये जो हम लोग का सिंबल टेबल आया था बीच में, उसकी कहानी कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, सिंबल टेबल को भी यूज करता है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा फुटनोट है कि हम लोग को दिखाई देगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर। देखिए हमने जो बोला है उसके साथ मैच करवाते हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो भी है वो भी याद कर लेंगे। तो फंक्शन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर में क्या क्या आता है? इट प्रोड्यूसेस द स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, जो हम लोग को पता है स्ट्रीम ऑफ टोकन्स प्रोड्यूस करता है। ब्लैंक स्पेसेस और कमेंट्स को एलिमिनेट कर देता है। हाँ, ब्लैंक स्पेसेस और कमेंट्स को एलिमिनेट कर सकता है। एंड कीप्स ट्रैक ऑफ द लाइन नंबर। लाइन नंबर कहाँ पे काम आएगा? लाइन नंबर काम आएगा जब हम लोग लेक्सिकल एरर रेज करेंगे, तब हम लोग को लाइन नंबर के साथ बताया जाता है कि कौन से लाइन में एरर हुआ है, right? So that will be used over here. Line number is also identified by the lexical analyzer to report errors. ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग को ये लिखा है कि एरर रिपोर्ट होता है, और जनरेट जो भी करता है वो सब कुछ सिंबल टेबल में स्टोर किया जाता है, ताकि बाकी फेजेस भी सिंबल टेबल से निकाल के यूज कर सके, राइट। ये हम लोग का लेक्सिकल एनालाइजर का फंक्शनैलिटी है। तो अब देखते हैं सिंबल टेबल का क्या काम है। सिंबल टेबल
ये जो सिंबल टेबल है, ये हम लोगों का, ये जो टोकन्स हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, जनरेट जो कर रहे हैं ये सारे टोकन्स को, वहाँ पे सिंबल टेबल में जाके स्टोर किया किया जाता है। तो ये सिंबल टेबल बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, ये सारा नेम्स, टाइप्स जो भी है, इन सबको एक ऐसे कोड से हम लोगों को आइडेंटिफाई करने पर हेल्प कर सकता है। लाइक अगर हम लोगों का कहीं कहीं पे एक वेरिएबल है, सपोज़ अ इनिशियल बोलकर एक वेरिएबल है, ठीक है? ये एक इनिशियल वेरिएबल है, ये क्या होगा, सिंबल टेबल में मेरा स्टोर होगा एक टेबल फॉर्मेट में, ऐसा टेबल फॉर्मेट में, सपोज़ कोई कोड रहा रहेगा 10 बोलकर, तो जब कोड में यूज़ होगा तो हर जगह पे लिखा रहेगा 10 यूज़ होगा, इंस्टेड ऑफ पूरा इनिशियल वाला वेरिएबल लिखने की जगह पे हर जगह पे 10 बोलकर यूज़ होगा। सो इट्स काइंड ऑफ कोड से उसको डिफाइन करने के हिसाब से एक डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प में सिंबल टेबल में स्टोर किया रहेगा, सो दैट दिस वेरिएबल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दिस कोड। ठीक है? आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब ऐसे ही जब स्टोर किया रहेगा, ये जब स्ट्रीम ऑफ टोकन्स जब जाने वाला है, तब ये स्ट्रीम ऑफ टोकन्स में ये वाला मैपिंग यूज़ कर सकता है। जब हम लोग सिंटैक्स एनालिसिस के लिए जाएँगे, तब वो सिंटैक्स ट्री बनाने के लिए वहाँ पे पूरा इनिशियल नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पे पूरा इनिशियल को 10 से ही डिफाइन किया जाएगा। अच्छा 10 से डिफाइन किया जाएगा। 10 को पॉइंट कर रहा है तो 10 का एड्रेस कहाँ पे है? वो स्टोर कर रहा है इनिशियल, ठीक है? वैसे उस हिसाब से यूज़ होगा ये सिंबल टेबल। सॉरी। सो ये ब्रीफ आपका पिक्चर है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं सोर्स प्रोग्राम जा रहा है लेक्सिकल एनालाइज़र के पास एज़ अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स, जहाँ से हम लोग सेंड कर रहे हैं टोकन्स को, एंड वो टोकन्स क्या हो रहा है, सिंटैक्स एनालाइज़र ले रहा है, फिर नेक्स्ट टोकन को आइडेंटिफाई करने के लिए वापस रिक्वेस्ट भेजता है, एंड ये सब के बीच में है सिंबल टेबल, जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस अकर हो रहा है। तो इसके बाद जब हम लोग सिंटैक्स एनालाइज़र के बारे में पढ़ेंगे, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर होगा। बट उससे पहले हम लोग सॉरी, उससे पहले हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि लेक्सिकल एनालाइज़र में कैसे ये सारा प्रोसेस होता है और क्या-क्या टूल्स यूज़ होता है फॉर डूइंग दिस लेक्सिकल एनालाइज़र। ये सब नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और टोकन्स आइडेंटिफाई करना भी हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, एक छोटा-सा रिविज़न कर लेते हैं अबाउट जो भी अब तक पढ़े हैं हम लोग। तो लेट्स सी। तो अभी तक हम लोगों को ये पता चला कि लेक्सिकल एनालाइज़र डज़ द ट्रांसलेशन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रीम से लेकर टोकन स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है, एंड ये जो टोकन स्ट्रीम बनता है, ये है वो सीक्वेंस ऑफ टोकन्स, एंड सीक्वेंस ऑफ टोकन्स विल कंटेन कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स और लिटरल्स, राइट? ये सब और पंक्चुएशंस भी। ये सब को सेंड किया जाता है टू द नेक्स्ट फेज, um, दैट इज़ द सिंटैक्स एनालाइज़र। एंड ये सिंटैक्स एनालाइज़र के जाने से पहले बहुत सारा फंक्शनैलिटी है लेक्सिकल एनालाइज़र का। वो सब क्या है? लेक्सिकल एनालाइज़र प्रोड्यूस करता है स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, एलिमिनेट करता है ब्लैंक स्पेसेस एंड कमेंट्स, फिर लाइन नंबर को ट्रैक करता है फॉर आइडेंटिफाइंग द एरर्स, एरर्स को भी स्टोर करता है एरर टेबल में, and also generates the tokens and saves it in the symbol table for future use, राइट? ये हो गया हम लोग का सिंटैक्स एनालिसिस। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसको पढ़ के आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजी लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको कोई सजेशन देना हो या फिर क्वेश्चंस कुछ भी है आपके दिमाग में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल चलो रिविज़न करे को, एंड ताकि आपको नया-नया वीडियो जो भी हम इसके आगे देने वाले हैं, उसका आपको बहुत जल्दी नोटिफ़िकेशन मिल जाए, एंड यू विल बी एबल टू सी द वीडियोज़ एंड हेल्प टू कंप्लीट योर सब्जेक्ट फास्टर। ठीक है?
Thank you so much for watching and meet you all in the next video. Thank you.